So yesterday we talked about several other important bodies. वर्ल्ड के वाटर बॉडीज देख रहे थे हम लोग. Today we will look into few important physiographic features. Physiographic features as in certain important lakes, certain important rivers, ठीक है, certain important mountains of the world. Okay. The highest peak of the world. बोलो भाई. Highest peak of the world. Mount Everest. कहाँ है ये? एशिया में, right? It is in Asia. Okay. Highest peak के बाद tell me the highest peak of Africa. The highest peak of Africa. Mount Kilimanjaro. Mount Kilimanjaro. ठीक है? This is the highest peak of Africa. एशिया का क्या था? Mount Everest. ठीक है? Which is also the highest peak of the world. Then North America. North America. North America. Anyone? Mount Denali. Mount Denali. ठीक है? South America. Highest peak. Mount Aconcagua. Mount Aconcagua. Spelling देख लेना एक बार. Mount Aconcagua. Then Australia. Australia. Mount Kosciuszko. Kosciuszko कुछ करके है, ठीक है? Mount Kosciuszko. Please do check these spellings. गलत हो सकता है. Australia. And then Antarctica. Antarctica. Mount कौन सा है? Massive. Vinson Massive. Vinson Massive. ठीक है? Antarctica का क्या है? Vinson Massive. VINSONMASSIVE. Vinson Massive. And Europe. यूरोप का Mount Elbrus. Mount Elbrus. These are the important mountain peaks. पता होना चाहिए सारे. अफ्रीका का है किलिमंजारो. एशिया का है माउंट एवरेस्ट. नॉर्थ अमेरिका का माउंट डेनाली. ठीक है? देन साउथ अमेरिका का अकनकागुआ. ऑस्ट्रेलिया का माउंट कुजियास्को या कुछ भी है, जो भी है देखना. एंटार्क्टिका विंसन मैसिव. एंड यूरोप माउंट एवरेस्ट. ठीक है? यूरोप का क्या है? माउंट एवरेस्ट. याद रहेगा एवरीवन? हाँ जी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट लेक्स. किसकी बात करेंगे हम लोग? लेक्स ऑफ द वर्ल्ड. इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ अमेरिका में यू ऑल नो देयर आर द ग्रेट लेक्स. ग्रेट लेक्स के बारे में पता है? यूएसए में जो है, कभी ना कभी पढ़ा होगा. दिस ग्रेट लेक्स आर सुपीरियर. लेक सुपीरियर, राइट? देन लेक मिशिगन. लेक मिशिगन. देन लेक ह्यूरॉन. लेक ह्यूरॉन. देन लेक इरी. देन इनके बीच में है नाइग्रा फॉल्स. कौन सा फॉल्स? नाइग्रा फॉल्स. एंड देन फाइनली इरी के बाद है लेक ओंटारियो. लेक ओंटारियो. दीज आर द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. क्या क्या बताओगे? लेक बोलो. सुपीरियर. देन लेक मिशिगन. देन लेक ह्यूरॉन. देन लेक इरी. देन नाइग्रा फॉल्स. एंड देन लास्टली लेक ओंटारियो. ठीक है? इसको याद करने के लिए आई यूज्ड टू रिमेंबर इट SMH इनो. ठीक है? SMH इनो. यू कैन मेक अ कोड. अगर आपको और कुछ लग रहा है अच्छा, वो भी बना सकते हैं. देन साउथ अमेरिका. एज यू गो टू साउथ अमेरिका, इंपॉर्टेंट लेक्स आर वेनेजुएला में अ स्पेशल लेक इज देयर कॉल्ड एज द लेक माराकाइबो. Lake Maracaibo. It is very rich in oil and natural gas. It is very rich in oil and natural gas. You won't believe, after the Middle Eastern countries, Venezuela is considered to be one of the richest countries in oil and natural gas. कौन सा लेक है? लेक माराकाइबो. इनको लोकेट करना है. क्या करना है? लोकेट करना है एटलस में जाके सब लोग. Then
साउथ अमेरिका में देयर इज अनदर important lake called as the Lake Titicaca. Lake Titicaca, which is between Bolivia and Peru. Bolivia and Peru. It is the highest lake of the world. It is the highest navigable lake of the world. Navigable मतलब you can ride boats on it. ठीक है? It is the highest navigable lake of the world. Lake Titicaca, between Bolivia and Peru. याद रहेगा? All right. Then we have Ojos del Salado. Ojos del Salado. ठीक है? Ojos del Salado, which is in the Andes Mountains. कौन से mountains? Andes Mountains. Andes Mountains. पहले this was considered to be the highest lake of the world. Please bear in mind. पहला वाला मैंने क्या बोला? Highest navigable. And यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं? Highest lake of the world. At first it was the highest lake of the world, but now that title has gone to Kaijin Sara. Kaijin Sara is a lake in Nepal. कहाँ है ये? नेपाल. Kaijin Sara जो है, it has become the highest lake of the world. Highest lake of the world. Understood? Earlier this was the highest lake, but now कौन सा है? Kaijin Sara is the highest lake of the world. Kaijin Sara या Kaijin Sara देख रहे हो? Clear है यहाँ तक? Alright. Next, let's talk about African continent, which is very very important question. कभी भी आ जाएगा यहाँ से. African continent बहुत ही important है और इनके लेक्स तो क्या कहते हैं. Africa में there are few of the important lakes of the world. Firstly, write down about Lake Victoria. कौन सा लेक है? Lake Victoria. Do spot these lakes on your atlas. समझ में आ जाएगा. Lake Victoria is actually shared between three countries, that is Kenya, Uganda and Tanzania. Kenya, Uganda and Tanzania. Kenya, Uganda and Tanzania. इन तीन के बीच में ये shared है. Alright. मैंने तो इसको ऐसे याद रखा था, विक्टोरिया के कुत्ते. ठीक है, विक्टोरिया के कुत्ते याद रह जाएगा. केनिया, युगांडा एंड टांजानिया. ऑलराइट. नेक्स्ट वी हैव लेक न्यासा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेक मलावी. क्या बोलते हैं इसको? लेक मलावी. मेरे साथ साथ बोलो, बोल के पढ़ो. लेक कौन सा है ये? Nyasa. It is also called as Lake Malawi, and it is shared between MMT. Make my trip. That is Malawi, Mozambique, and Tanzania. Okay, and Tanzania. Malawi, Mozambique, and Tanzania. ठीक है जी? क्लियर है यहाँ तक? Okay. Next important lake is the Lake Tanganyika. Very important lake. ठीक है? Lake Tanganyika. Lake Tanganyika is shared between four countries, that is Zambia, DRC, Burundi, and Tanzania. Zambia, DRC, Burundi and Tanzania. I made a story इसमें, as I remembered is Congo के beaches में I was having bread and jam, ठीक है, and I was sunbathing. सनबाथिंग में क्या हुआ? टैन हुआ पहले, और टैन इतना हो गया कि आखिर में I was burnt.
ऐसे याद रख लो, कॉन्गो के बीचेस पे आई वाज हैविंग व्हाट, ब्रेड एंड जैम, एंड आई वाज व्हाट, सन बेदिंग। सन बेदिंग में क्या हुआ, पहले टैन हुआ, एंड वो टैन फिर क्या बन गया, बर्न्स बन गया। ठीक है, तो कॉन्गो से याद रखोगे DRC, जैम से क्या याद रखोगे, जाम्बिया। ठीक है, टैन से क्या याद रखोगे, टांजानिया, एंड बर्न से क्या याद रखोगे, क्लियर है भाई एवरीवन? ओके, क्या सनबेथ कर रहा था, टांगे सनबेथ कर रहा था, तो ऐसे ही इसको कनेक्ट कर लो, आई वाज सनबेथिंग द लेग्स। ठीक है, तो टांगेनिका एंड द 4 कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक इज द लेक चाड। लेक कौन सा है, लेक चाड। लेक चाड इज शेयर्ड बिटवीन द कंट्रीज कॉल्ड एज चाड, Cameroon, Niger and Nigeria. Lake Chad is shared between Chad, Cameroon, Niger and Nigeria. ठीक है, डबल एंड डबल सी रहेगा, चार कंट्रीज हैं एंड चार, डबल सी एंड डबल एन, चाड एंड कैमरून, एंड डबल एन में क्या हो जाएगा, नाइजर एंड नाइजीरिया। ठीक है जी, ठीक है यहाँ तक। देन लास्टली इट्स द लेक वोल्टा, लेक वोल्टा विच इज इन घाना। कहाँ पे है ये, घाना में, लेक वोल्टा विच इज इन घाना, लेक वोल्टा विच इज इन घाना। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्स, लेट्स कम टू एशिया। किसकी बात करेंगे, एशिया की। एशिया में लिखो, एशिया इज होम टू द लार्जेस्ट लेक्स। सबसे पहले राइट डाउन अबाउट द कैस्पियन सी। कैस्पियन सी पता है ना, इट्स अ लेक, इट्स द लार्जेस्ट लेक। ओके, देन राइट डाउन अबाउट द सॉल्टीएस्ट लेक, दैट इज लेक, कौन सा होगा, सॉल्टीएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, सॉल्टीएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, इट इज लेक वान। रेड सी मत बोलना, रेड सी गलत हो जाएगा। ठीक है, इट इज लेक वान, एंड लेक वान कहाँ पे है, टर्की में है। ठीक है, टर्की में है। द सॉल्टीएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज लेक वान विच इज इन टर्की। क्लियर है? ओके, देन राइट डाउन अबाउट डेड सी। डेड सी के बारे में सुना है? डेड सी इज एक्चुअली शेयर्ड बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन, इजराइल एंड जॉर्डन। डू लोकेट दीज लेक्स, एक बार जरूर देखना, पिक्चर बन जाएगा। डिड यू बाई द मैप्स? खरीदा है, ऑर्डर किया है, नहीं किया है? एटलस ऑर्डर नहीं किया? ओके, डेड सी। नेक्स्ट राइट डाउन अबाउट अरल सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन केम इन द यूपीएससी प्रीलिम्स। अरल सी, अगर आप देखोगे, दिस क्वेश्चन केम डायरेक्टली फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड एटलस। टू गिव यू अ प्रूफ, अरल सी के बारे में दिया हुआ है कि 2000 में कितना बड़ा था, 2010 में कितना सूख गया है, 2014 में इट हैज बीन completely lost. This question came directly in the UPSC prelims that Aral Sea has been dying या फिर it has been drying down drastically, तो आप बोलते हैं this is correct, this is true. ठीक है, Aral Sea has been drying, directly आ रहे हैं यहाँ से। To do see the images अच्छे से देखना। Aral Sea, it is between Kazakhstan and Uzbekistan. किसके बीच में ये? Kazakhstan and Uzbekistan. Aral Sea. And Aral Sea में there are two rivers which flow into the Aral Sea, that is the Sir Darya and Amur Darya. Sir Darya and the Amur Darya. Amur Darya या Amur Darya देख रहे हो? Sir Darya and the Amur Darya. These two rivers flow into the Aral Sea. But because of over exploitation of water resources as well as constructing dams, क्या हो रहा है? Aral Sea में ये flow नहीं जा पा रहा है, and जब flow नहीं जा पा रहा है तो क्या हो रहा है? It is drying up. Clear है? Understood? Sikha? This is drying up. It is drying up very fast because the flow of rivers is very low.
the flow of rivers is very low. ठीक है, Aral Sea. It is between which countries? It is between Kazakhstan and Uzbekistan. Understood? Okay जी. Next, write down about Lake Balkhash. Lake Balkhash. Lake Balkhash is it's quite important. Why? It is in Kazakhstan. कहाँ है ये? Kazakhstan. Lake Balkhash. ये भी क्वेश्चन आया था यूपीएससी में. यानी ये नहीं आया था, शायद बैकाल आया था. बैकाल आया. ठीक है. नेक्स्ट राइट डाउन लेक बैकाल. कौन सा लेक? लेक बैकाल विच इज इन रशिया. कहाँ है ये? रशिया. दो इसका विड्थ इतना नहीं है. द लेक इज समथिंग लाइक दिस. ठीक है. दो इट्स विड्थ इज नॉट दैट ग्रेट एंड नॉट मच, बट इसका जो डेप्थ है इट इज ह्यूज. इट इज कॉल्ड एज द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड. डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड. अंडरस्टूड? नाउ यू अंडरस्टैंड कि डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड होगा तो ऑब्वियसली वाटर रिसोर्सेज तो बहुत सारे होंगे. There will be ample amount of water present in this lake. This question came that Lake Aral Sea and the Lake Baikal are drying up drastically. दोनों को connect कर दिया था and then they asked that Aral Sea and Lake Baikal are drying up drastically. I understood that Aral Sea is drying up drastically क्योंकि मैंने फोटो देखे थे. But then I tried to recall my notes and then I understood that since Lake Baikal is the deepest lake of the world, definitely water resources will be quite high. If it is quite high, then how can it dry up? How can it dry up? Drastically. So I eliminated that option. समझ में आया? This is how you have to use the information that you study in the classes. थोड़ा street smartness लेके आना, calm yourself and then try to recall कि मैंने पढ़ा है कि नहीं. अगर पढ़ा होगा ना, definitely it will hit you. It will hit you and then you can eliminate the options and then you can reach to the correct answer. Understood? Okay. Lake Baikal and Lake Balkhash. Lake Baikal हो गया deepest lake. बढ़िया. Then write about Australia. Australia में जो important lake है that is Lake Eyre. Lake Eyre. E-Y-R-E. Lake Eyre. Australia. Clear everyone? Okay. तो lakes हो गया, mountain ranges हो गया. Now let's talk about some of the important rivers. This question came this year. पता है आप लोगों को? देखा था? कौन सा रिवर पूछा था? Zambezi River. They asked about the Zambezi River. उठा के देखना एक बार, मिल जाएगा. We'll go continent to continent. ठीक है, continent to continent जाएंगे. सबसे पहले we'll start with Asia. Let's start with Asia. As you all know, Asia is blessed with rivers. Yes or no? Asia को भी हम लोग तोड़ेंगे into several parts. Let's break it into several parts. Firstly, West Asia देखते हैं. West Asia. Then we'll talk about East Asia. East Asia. Then we'll talk about South Asia, जहाँ पे इंडिया है. ठीक है. Then we'll talk about Central Asia. This Kazakhstan वो सब एरिया हो जाएगा. Central Asia. And lastly, it will be the Southeast Asia. Southeast Asia. Clear है? Let's see the important rivers flowing through these parts of the continent. First of all, South Asia के West Asia की अगर मैं बात करूँ, important rivers of West Asia includes कौन से? लिखो. Tigris and the Euphrates. Tigris and the Euphrates. जब world history या ancient history पढ़ोगे ना, you'll find that Tigris and Euphrates were actually responsible for the rise of Mesopotamian civilization. कौन सा civilization? Mesopotamian civilization. Tigris and Euphrates. Clear है? It flows through Iraq. कहाँ से flow करता है ये? And then drains into the Persian Gulf. कहाँ drain कर रहा है? Persian Gulf. ठीक है, drain समझ में आ रहा है ना?
लास्ट एंड इसका पॉइंट क्या है? पर्शियन गल्फ, टिग्रीज एंड दी यूफ्रेटिस. अनदर इंपॉर्टेंट रिवर इज दी यारमुख रिवर. कौन सा रिवर है? यारमुख रिवर, which is actually where it flows through, it becomes a boundary. क्या है ये? बाउंड्री है between Israel and Jordan. Israel and Jordan, ठीक है, Israel and Jordan. and इसी के बीच में you find कौन सा सी? Dead Sea. Can you recall the Dead Sea? पढ़ा था अभी हम लोगों ने. Dead Sea जो है वो इसी रिवर के ऊपर है, यारमुख रिवर के ऊपर, between Israel and Jordan. ठीक है जी, एवरीवन क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईस्ट एशिया. ईस्ट एशिया के इंपॉर्टेंट रिवर्स इफ यू सी बहुत सारे हैं. द इंपॉर्टेंट वंस आर हुआंग ही. ठीक है, चाइनीज नाम मुझे समझ में नहीं आते, आप लोग याद कर लो. हुआंग ही रिवर के बाद है यांगसे रिवर. कौन से रिवर? यांगसे रिवर, वेरी इंपॉर्टेंट. यांगसे रिवर बेसिन, चाइना का जो राइस यहीं पे उगता है, यांगसे. यांगसे के बाद है सीकियांग रिवर. कौन सा रिवर है? सीकियांग और जीजियांग. सीकियांग और जीजियांग इज द सेम थिंग. ठीक है, सीकियांग और जीजियांग, और सीकियांग और जीजियांग आर द सेम थिंग. Apart from this, other important rivers are, these are there entirely in, कहाँ पे? चाइना में. ये कहाँ पे? entirely चाइना में है, and it drains into the East China Sea. कहाँ ड्रेन कर रहा है? East China Sea. सीकियांग और जीजियांग जो है ये साउथ चाइना सी में कर रहा है, याद रखना. सीकियांग is draining into the South China Sea. यांगसे is draining into the East China Sea. ठीक है ना, यांगसे is draining into the East China Sea and Huanghe is draining into the, अब देखना, येलो सी के ऊपर है. किसके ऊपर है? येलो सी के ऊपर है. तो इसका लोकेशन जरूर देखना एक बार. डू वॉच द लोकेशंस ऑन द मैप, विल बी मोर क्लियर. सीकियांग और जीजियांग, यांगसे एंड हुआंगे. क्लियर है भाई? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर देखो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है मेकोंग रिवर. very important river, Mekong river. It originates in China. कहाँ originate करता है ये? चाइना में. But we will find its reference in Southeast Asia. कहाँ मिलेगा reference इसका? Southeast Asia. Mekong river originates in China but flows through MLTVC. क्या होता है MLTVC? M stands for Myanmar. ठीक है, म्यांमार. साउथ ईस्ट एशिया का बात कर रहा हूँ. L for लाओस, ठीक है, T for थाईलैंड, देन V for वियतनाम एंड C for कंबोडिया. क्लियर है? मेकोंग रिवर ओरिजिनेट्स इन चाइना बट फ्लोज अक्रॉस दीज कंट्रीज. याद रहेगा सबको? मेकोंग, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर. ओके, next important river that originates in East Asia, that is China, that is the Sangpo. कौन सा रिवर है? Sangpo. And it flows कहाँ पे? It flows into South Asia as what? Sangpo क्या बन जाता है South Asia में? The Brahmaputra. ठीक है जी, clear है? The Sangpo becomes what? Brahmaputra in South Asia. यहाँ तक कोई डाउट है? क्लियर राइट? ओके, यार्लुंग सांगपो बोलते हैं. टू बी थोड़ा सा डिटेल में अगर हम बोले तो यार्लुंग सांगपो, which is called as the Brahmaputra in South Asia. All right. Then very important, Amur river. Amur river ध्यान रखना, not Amur दरिया. कौन सा बोल रहा हूँ मैं? Amur river. Amur river actually forms a boundary. It forms a boundary between Russia and China. Very important. Amur river forms a boundary between Russia and China. Do check it out today on the map. You'll find all these rivers on the map. Do watch it. ठीक है? Amur river between Russia and China, and this river is
इसका एक्सटेंशन जो है यू विल फाइंड दैट इट इज कॉल्ड एज यालुजियांग. कौन सा? यालुजियांग, which forms a boundary between China and North Korea. ठीक है? किम जोंग उन पसंद है किसी को? क्या पर्सनालिटी है उसकी? Nobody can match him. Yalujiang. It is the river which forms a boundary between China and North Korea. Clear everyone? ये दोनों रिवर ध्यान रखना, थोड़े से रडार में नहीं रहते हैं, बट यूपीएससी कभी भी पूछ सकता है इनके बारे में. यालुजियांग बिटवीन चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, एंड अमूर विच इन रशिया एंड चाइना. ठीक है? ऑलराइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट साउथ एशिया. आप लोग ये बता दो साउथ एशिया के इंपॉर्टेंट रिवर्स क्या क्या होंगे? गंगा, सुन लो, देन गोदावरी, यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. ठीक है? गोदावरी, देन महानदी, देन कावेरी, कृष्णा. ठीक है? और क्या होगा? नर्मदा, ताप्ती, एंड इट कैन गोज ऑन. ठीक है? दीज आर दी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया. अभी तो क्या किया हमने? इंडिया के रिवर्स किए. Then you have to talk about the Indus Valley system. That is the Indus River, which flows across. कहाँ से? चाइना से ओरिजिनेट करता है. Then it flows into India. Then it flows into Pakistan. Clear है? Then Indus River के सिस्टम के और कौन से हैं? We have झेलम. ठीक है? We have चेनाब. Then चेनाब के बाद रावी. Then we have ब्यास. And then we have सतलुज. Satluj. Remember, Indus River and Satluj River both originate कहाँ से? China से. They originate from China. Indus and Satluj both originate from China, whereas Jhelum, Chenab, Ravi, Byas they originate from India. ठीक है? They originate from India. Indus and Satluj originates from China. Here everyone. बहुत बढ़िया. लेकिन सर सातो इंडस रिवर सिस्टम में ही आता है ना? हाँ, ये सारे इंडस रिवर सिस्टम का ही पार्ट है. ठीक है? ये सारा इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है. नाउ लेट्स मूव टू सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया के इंपॉर्टेंट रिवर्स देखो. इट इज सिर दरिया एंड आमू दरिया. याद है? सिर दरिया एंड आमू दरिया. दे बोथ ड्रेन कहाँ पे? अरल सी में. दे बोथ ड्रेन इन दी अरल सी. याद आ रहा है? अरल सी पढ़ाया था अभी. अरल सी में. ओके. देन राइट डाउन वोल्गा रिवर. कौन सा रिवर? वोल्गा रिवर. वैसे टेक्निकली इट इज पार्ट ऑफ यूरोप. ठीक है? इसको यहाँ से छोड़ दो. वोल्गा रिवर एक्चुअली ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी. कहाँ ड्रेन करता है ये? कैस्पियन सी. इसको हम यूरोप में लिखेंगे. ओके? सेंट्रल एशिया में इतनी है. साउथ ईस्ट एशिया में एक दो रिवर और है, लिखो उसके बारे में. साउथ ईस्ट एशिया में म्यांमार में स्पेसिफिकली म्यांमार में यू विल फाइंड सर्टेन इंपॉर्टेंट रिवर्स. सबसे पहले तो यू हैव हर्ड अबाउट इरावदी. इरावदी का नाम सुना है सबने? इरावदी रिवर वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज द लाइफ लाइन ऑफ म्यांमार. इरावदी रिवर. इरावदी के बाद रिमेंबर कलादान रिवर. कलादान रिवर जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज whenever you will study IR international relations जब करोगे you will find that we have something called as Kaladan multimodal project. Kaladan multimodal project. multimodal project. मलेशिया नहीं. multimodal का मतलब होता है instead of one mode of transport. वन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब रोड हो गया या रेल हो गया या एयरवे हो गया. मल्टी मोडल मतलब आप रोडवेज, रेलवेज और इनलैंड वाटरवेज को क्या कर रहे हो? कनेक्ट कर रहे हो. ठीक है? व्हेन यू आर यूजिंग मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट तब क्या हो जाएगा? ये मल्टी मॉडल बन जाता है. क्लियर है एवरीवन? ठीक है. तो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है, यू रीड अबाउट इट, यू विल फाइंड दैट इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कोलकाता. कहाँ से ओरिजिनेट करता है? कोलकाता. देन इट रीचेस टू द म्यांमार स्टेट ऑफ सितवे. कौन से स्टेट में जाता है? सितवे पोर्ट. ठीक है. इट गोज टू द म्यांमार स्टेट ऑफ सितवे.
सिटवे से देयर इज दिस रिवर, कौन सा रिवर? कलादान रिवर। कौन सी रिवर है? कलादान रिवर, विच एंटर्स इनटू मिजोरम। कहाँ एंटर कर जाता है? मिजोरम। तो इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई इट्स ट्रांसपोर्ट रूट्स फ्रॉम द चिकन स्नेक, पता है ना चिकन स्नेक, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग? कलादान मल्टी मोडल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। डू रीड अबाउट इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड यू कैन यूज इट ओवर इन सेवरल ऑफ द आंसर्स, ठीक है? यू कैन यूज इट इन योर सेवरल आंसर्स एज वेल एज आईआर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, क्लियर है भाई यहाँ तक? नेक्स्ट, साउथ ईस्ट एशिया, आई एम राइटिंग इट हियर। ओके, साउथ ईस्ट एशिया में नेक्स्ट लिखो, another important river is Chao Phraya river. Chao Phraya river. कौन सा river? Chao Phraya river, which is actually the lifeline of Thailand, and it flows through the Bangkok city. कौन सी city? Bangkok city. Chao Phraya river flows through the Bangkok city. ठीक है? Clear है? Bangkok is the capital of थाईलैंड, ठीक है? बैंकॉक इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड। चाओ फ्रेया, चाओ फ्रेया के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज द होंग रिवर। कौन सा रिवर? होंग रिवर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेड रिवर। क्या बोलते हैं इसको? रेड रिवर, बिकॉज ऑफ द एल्यूवियल डिपॉजिट्स। रेड डिपॉजिट्स की वजह से रेड कलर हो गया है, एंड इट इज द लाइफलाइन ऑफ वियतनाम। कहाँ पे? वियतनाम। वियतनाम का जो कैपिटल है हनोई। वियतनाम का कैपिटल क्या है? हनोई। वहां से ये फ्लो करता है, ठीक है? होंग रिवर फ्लोज थ्रू द कैपिटल सिटी हनोई। H फॉर होंग, H फॉर हनोई, याद रहेगा? होंग एंड हनोई। ऑलराइट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज द मेकोंग रिवर। पढ़ लिया हम लोगों ने उसके बारे में? मेकोंग रिवर। ओके, बट तो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। लेट मी रिकॉल, एक बार रिपीट कराता हूँ। मेकोंग रिवर याद है सबको? originates from China, flows through MLTV Sea. M मतलब म्यांमार, L मतलब लाओ, T मतलब थाईलैंड, V मतलब and C मतलब कंबोडिया, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज द इरावदी रिवर, which is actually the lifeline of म्यांमार, ठीक है? दिस लाइफलाइन ऑफ म्यांमार, एंड म्यांमार का जो कैपिटल है नाइपीदाओ। नाइपीदाओ इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार, वहां से इरावदी रिवर फ्लोज, ठीक है ना? नेक्स्ट है कौन सा? कलादान। कलादान क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द मल्टी मोडल प्रोजेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है द चाओ फ्रेया रिवर। चाओ फ्रेया रिवर कहां से फ्लो करता है? बैंकॉक और थाईलैंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर इज द होंग रिवर, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द रेड रिवर, फ्लोज थ्रू, ठीक है, वियतनाम। ठीक है जी एवरीवन।